yourself before we move on? So yeah, I am Hera, and I have an experience of 8 years in training, professional development course, as well as I used to provide the soft skills trainings. I deal with the students, employees. I'm also working as an organizational psychologist, where the main role is for the well-being of the employees, and Mm-hmm. I'm very much into having new experiences, learning new things, and providing people Mm-hmm. support regarding the issues they are facing in their life. So this is a bit about me. Thank you. Okay. All right. So, yeah, आपको clinical as a clinical psychologist 8 साल हो गए काम करते हुए. So basically, my degree is in applied psychology, and Okay. my most of the work is in counseling. Okay. Either it's educational counseling, either it's Mm-hmm. counseling with the students or with the other people. Like Mm-hmm. for example, if someone needs counseling regarding well-being, they are facing Right. any Right. depression, they are Mm-hmm. having any problem like stress, anxiety, whatsoever the minor Different level. issues. Yeah. Right. Right. So Right. I Of course. Okay. Okay. So let's jump into it क्योंकि हमने काफी time हमारा waste भी हो गया है, and we do want to hear from you. मेरी तो रोजी हर हफ्ते मेरे मुझे सुन रहे होते हैं. yeah. जी हमारे जो audience है. So what is premarital counseling? So Explain yeah, करें. for me this is a very important Hmm. topic because when an individual get into this life, they have to, I think they have to work on that. Like for Hmm. example, majority we are going to face are the Z generation, और यहाँ Hmm. पे generation gaps आ रहे होते हैं. We have a lot of individuals. We will be meeting with a lot of individuals, and in that per se, if you want to get married, you have to have some conversation regarding your marital life. ये Hmm. नहीं होता हम all of a sudden you go and you say कि okay I want to marry you. हमारे यहाँ Hmm. पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है. बट प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शादी से पहले go to the person having a discussion, healthy discussion about Hmm. marriage. अब this is not kind of a discussion के people used to think कि जी अगर कोई conflict होगा then we will go to the counselor for the Hmm. marital counseling. No, सिर्फ this is सिर्फ conflict के लिए काउंसलर के पास. Right. yeah, that's Hmm. not the case. This is the big mistake. If you think कि you are having any kind of a issue, तब हमने जाना है, तो वहाँ पे Hmm. you are not going right. इसका मकसद ये Hmm. होता है कि you will go या you will having a session with the counselor that will help you out how to resolve the conflict. आपने marital life को balance कैसे करना है? What about the work Hmm. life balance? What about the pressure handling? What about the sharing of responsibilities? Hmm. हमारे यहाँ पे जो मेन इश्यू है ना वो ये है कि हम लड़के और लड़की को स्टेज पे बिठाते हैं, उनको बता देते हैं कि ओके नाउ यू आर मैरिड, एंड आफ्टर बस. देयर Hmm. इज नथिंग. किसी बच्चे को बिल्कुल. ये नहीं पता कि भाई व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ आई एम Hmm. गोइंग टू वर्क ऑन दैट. किसी को कुछ Hmm. नहीं पता, फिर वो एक जोन में चले जाते हैं एंड दे दे Hmm. दे आर इन अ ग्रेट स्ट्रेस. अब मैनेज नहीं हो रहा, Right. हाँ. इंडिविजुअल वहां पे बिल्कुल. एक को गुस्सा किसी बात पे जल्दी आ जाता है, एक को आता ही नहीं है हाँ, रिस्पॉन्ड. हर एक की पर्सनालिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होती है. Yes. So हाँ. for when we talk about premarital marital counseling, वो उसमें Hmm. that will help to understand the other person, because हम लोगों ने you have heard the term कि जी इन दोनों की आपस में understanding होनी चाहिए, understanding होनी चाहिए. Hmm. But what is the understanding? You need to Exactly. tell that क्या कि अंडरस्टैंडिंग क्या है. है क्या. और ये तो होता है कि वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, पेशेंस बिल्ड करें, बट वो सिखाएगा कौन, कहाँ से आएगी. That has Yes. to start from before these Yeah. young adults get married. शादी से पहले से. And then वो जो आप बात कह रही हैं कि हमारे घरों में तो ये होता है, हम लोगों का हमारा भी एक्सपीरियंस यही रहा है when we were ready to get married, कि अगर हम ऐसी कोई बात करना भी चाहें कि ये पूछ रहे कि वो कितना कमाता है या हम कैसे करेंगे, इज इट टू इनकम हाउस होल्ड, वन इनकम हाउस होल्ड, बच्चों का क्या है, तो हमारे पेरेंट्स और जो बड़े होते हैं, नहीं नहीं ऐसी बातें अभी नहीं करना, शादी की बात करना. हालांकि these things are, like you're saying, they're important to figure out beforehand, and I think counseling can help with things like that. कि जो चीजें आप खुद से you don't know how to bring them out and how to discuss them, so it can Yeah. help you to communicate your issues and what you're concerned about.
counseling also helps in understanding yourself as well. For example, if I am not self-aware, like if you will come to a counselor and having a discussion कि okay, I'm going to get married, that person will help you out in understanding yourself as well. देखिए मैं एक शेर ना बहुत ज्यादा बोलती हूँ and I love this one कि अपने ही मन में डूबकर पा जा आगे जिंदगी मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. So if I know about myself, I'll able to handle the situation कि अच्छा मैं certain position में certain उसमें किस तरह behave करती या करता हूँ. So for that per se, yeah, it's important to go to the counseling session or learn about it. और अब तो हम लोग ना Z generation, majority of the couples are now Z generation और Z generation सबसे best thing which I have perceived now is that कि they work priorly. वो काम से पहले उसका homework करते हैं. They have the idea कि अच्छा अब हम ये step कर रहे हैं, we have to make a plan, which is the best thing in this generation. Or for them, if you are going to a new phase of your life, so this is the best opportunity to go for the counseling as well. कि अब और ये obviously we're talking about premarital counseling, but I would suggest कि किसी भी नए phase को start करने से पहले you can go for counseling कुछ अरसे के लिए to get used to it, to understand what you're getting yourself into, because हम लोग शादियों को भी इसी तरह लेते हैं कि शादी के बाद सब figure out हो जाएगा. But like you said, figure out नहीं होता. That's where the problems start. पहले वो 2-3-4 महीने honeymoon period रहता है. Well, you keep putting problems on the back burner that you don't want to deal with it. और फिर एक टाइम आता है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी क्यों मसला है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया. और पहले जाहिर है how would you communicate? हमारे culture में it's hard to communicate these kinds of things. So इस issue में भी और चीजों में भी. Go on. Yeah, I do perceive कि ना हमारे यहाँ पे the main factor is that कि जो हम we see कि okay, this person is adult, that person needs to get married, but we are not letting them enjoy their life. हम लोगों ने ना बहुत सी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हुई होती हैं, हम लोगों ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की हुई होती हैं. ओके अब शादी हो गई, यू नॉट अलाउड टू डू दिस, यू आर नॉट अलाउड. एक्सक्यूज मी, काइंडली लेट द पर्सन डू, let them learn from their mistakes. It's okay. It's for me, it's not कि marital counseling is for the couple only. For me, marital counseling आपके friends की होनी चाहिए, आपके parents की होनी चाहिए, आपके siblings की होनी चाहिए, क्योंकि ना ये चीज भी हो रही होती है. अच्छा अभी शादी हुई नहीं और वो स्टार्ट हो जाता है, ये तो रन मुरीद हो गया, ये तो बीवी के नीचे लग गया. बिल्कुल. You are saying कि develop an understanding. And the second point, you are taunting that person. वहाँ पे वहीं से ना काम खराब होना शुरू हो जाता है. So we need to counsel the family and the friends also कि kindly let them give us space. If they are enjoying in certain kind of a position, let them do that. This is their right. अब the thing is that जब वहाँ पे ये प्रेशर मर्द के ऊपर आ जाता है ना कि अच्छा मुझे कोई टैग मिल जाएगा या people will perceive me like कि I am a woman man, तो that's a very bad thing और मैंने तो ये टाइटल नहीं लेना. अब वहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम आती है? They will start preferring their own family, their siblings, their friends, their parents, and they are giving less time to the new relationship जहाँ पे understanding is important, because this is not a blood relationship. This is your personalities are entirely different. उस पे टाइम लगाने की जरूरत है. Yes, और यहाँ पे फिर मसला आ जाता है. फिर क्या होता है कि after marriage responsibilities increase हो जाती हैं and the person don't know how to handle that responsibility. जब आपको पता ही नहीं होगा कि how to go about the responsibility, you will start running away. आप लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे. लड़की कहेगी लो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई, मैं तो ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये तो कुछ करता नहीं है, तो बैठ के टीवी देखता रहता है. So we need to understand कि अच्छा अगर एक compilation हो रही है, if you are connecting with each other, sharing of responsibility is important, setting the boundary is important. Who is going to make decision of your family? Are you are going to make decision of your family or your family is going to make decision of your family?
दिस इज द बाउंड्री सेटिंग, दिस इज द थिंग वी हैव टू वर्क ऑन. जब हम लोग मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं ना, प्री मैरिटल काउंसलिंग की, इन प्री मैरिटल काउंसलिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल द मेल पर्सन as well as the female कि guys you need to understand कि आपने first you have to create your own liaison and after then that आप लोग families को involve करें. हमारे यहाँ पे मसला होता है कि शादी हो गई, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आइदर फ्रॉम द गर्ल साइड और मेल साइड कोई एक डोमिनेट कर जाता है, वो इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई. उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों की रेपो बिल्डिंग खराब हो जाती है. इन दोनों के आपस में कोई मसले, कोई झगड़े नहीं होते. द फाइट इज बिकॉज ऑफ द फैमिली, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम. अब यहाँ अ पर्सन, यहाँ पे मैं आई थिंक कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. उसकी रीजन ये है कि ही इज गोइंग टू सेट द बाउंड्री. अल्लाह मियाँ ने प्रोटेक्टर बनाया है मेल को. फीमेल इज नॉट द प्रोटेक्टर और कस्टोडियन ऑफ द हाउस. मेल इज द प्रोटेक्टर. सो इफ समवन इज bypassing you and going to your family directly, which means कि कहीं ना कहीं you are unable to set the boundaries. अगर आप वो boundary on the spot set कर लेते हैं, then your own house and your parental house or your own family will be on the same page. जो मर्द यहाँ पे कमजोरी ले लेते हैं ना, वहां पे मसला आ जाता है. So when we talk about the premarital counseling, this is the important factor कि guys you need to understand, क्योंकि I do understand, I do relate with the male person कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है. मैं किसके पास जाऊँ, मम्मी के पास जाऊँ, बीवी के पास जाऊँ, बीवी के पास जाता हूँ तो माँ बुरा मानती है, माँ के पास जाऊँ बीवी बुरा मानती है. वो जो एक ब्लर सी लाइन होती है ना, दैट इज नीड टू हैव. अब वहां पे फिर क्या मतलब होता है, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज स्ट्रेस आने शुरू हो जाएंगे. आदमी जो है वो उस रिलेशनशिप को अवॉइड करना शुरू कर देगा, क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे. So this is how the things go worse. So in order to make the things betterment, you have to learn before marriage how to resolve the conflict, how to set the boundaries. If there is any kind of a conflict, आप दोनों ने किस तरह उसको बताना है. What are your values? What is the value of your spouse? वो किधर stand करती है? What is her understanding या his understanding? What is his or her goals? Where that person want to go? शादी से पहले अगर आप ये बातें पहले डिस्कस कर लें, it is easier for you to make a decision. बाद में वो कहते हैं ना, it is useless to cry over a split milk. अभी आज I don't know, you have noticed, you might notice कि there is more divorce rate as compared to the हाँ, बढ़ती जा रही है डेफिनेटली डिवोर्स रेट. हाँ, उसकी बेसिक रीजन क्या है? हम लोग शादी कर लेते हैं फौरन और वो हनीमून पीरियड एंजॉय हो रहा है. आफ्टर देन दैट व्हेन द रियलिटी ऑफ लाइफ ओपन्स, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओ मैं कहाँ फंस गया. और एट दैट पॉइंट विल स्टार्ट कि ओके आई एम गोइंग टू बैक ऑफ. अब यहाँ पे भी जब हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहां पे फिर यू हैव टू शो पेशेंस. जब आपने एक डिसीजन ले लिया है, नाउ यू हैव टू शो पेशेंस एंड यू हैव टू गो अबाउट इट. शादी इज नॉट लाइक के अच्छा मुझे आज ये बंदा पसंद आ गया है, मैं इसके साथ रहूंगी, कल उसमें मुझे उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, नाउ आई एम गोइंग टू पुल बैक माई सेल्फ. नो, नाउ you have to commit, and that is why it's important कि आप पहले से ही figure out करें इन चीजों को, जैसे कि आप बाद में साल के बाद आपको अंदाजा हो कि this wasn't the right fit for me. Yes. तो क्या when you are talking about counseling, जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या चीजें हैं जो काउंसलिंग में, प्रीमैरिटल काउंसलिंग में आ जाती है. टाइमलाइन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर एक कपल है, उनकी डेट नहीं सेट हुई, they're engaged, तो अगर वो करना चाहें काउंसलिंग तो उसकी टाइमलाइन क्या होती है, just roughly? I would suggest कि ना इनिशियली जब बात चल रही हो ना, तो it is a better option कि let them having a conversation. अगर पेरेंट्स की प्रेजेंस में हो जाए, इट्स नॉट लाइक कि जी अकेले ही हो. अगर अकेले हो जाए तो चले यू कैन ओपन अप, बट लेकिन अगर पेरेंट्स की प्रेजेंस में भी हो तो गर्ल एंड द बॉय हैज अ राइट टू हैव अ कन्वर्सेशन. शादी इन दोनों की हो रही है, सो बिफोर हैंड इट्स इम्पोर्टेंट. बजाय इसके कि अम्मी को उसकी वो खूबसूरत लगी है, उसकी हाइट अच्छी है, वो प्यारी है, तो मैं उससे पसंद आ गई है तो भाई अब हम शादी करें. नो, you have your own aspirations, you have your own wishes which your parents don't know.
तो अब इफ योर पेरेंट डोंट नो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, हाउ कुड इट हम्म। पॉसिबल दैट दे विल फाइंड अ राइट मैच फॉर यू? So let them have बिल्कुल। one-on-one conversation. बेशक it's a brief one. उसमें if you feel connected, if you feel a vibe is matching, then go ahead. हम्म। But if you feel like कि नहीं अभी I am on a discomfort side और मुझे और ये discussion should be a very mature discussion. It's हम्म। not like अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, आप हम्म। किस तरह, no. हम्म। You have to say कि okay this is my vision, this is your vision, कहाँ पे हम align कर सकते हैं, what is your boundary. For example, हम्म। this is a simple thing कि जी मैं सुबह early morning में नहीं उठ सकती, how to go about it. आप हम्म। इसमें मुझे कैसे support provide करेंगे? The person, if the other person is a night owl or a early bird, so then you have to हम्म। resolve that thing. अब बाद में हम्म। मसले आते नहीं खड़े होते ना, मेरी बहू तो सुबह उठी नहीं है, उसने उठ के मुझे नाश्ता नहीं बनाया। भाई बहू उठती ही नहीं है सुबह, और ये बात आपने शादी That's से just पहले नहीं हम्म। है, बहू ने सारी उम्र रोटी नहीं ओके। पकाई। हम्म। अब आप उससे मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपके घर आएगी तो वो बहुत अच्छी रोटियां बनाना शुरू कर देगी। हियर हम्म। पेरेंटल काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स हम्म। को पेरेंट्स ये समझते हैं कि ना अब हम अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग इनको लेके चलेंगे, बहू हमारे पास आ गई है तो वो आज से 40 साल बैक पे आएगी और वो हमारे तौर हम्म। तरीके को अपनाएगी। औरत में अल्लाह ने अडेप्टेबिलिटी रखी हुई है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बच्चों को उनके जमाने के हिसाब से पालो। यहाँ पे सबसे हम्म। बड़ा अलमिया ये होता है कि आफ्टर मैरिज लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है यू हैव टू गो बैक। आप आज से 20 साल पहले जैसे होता था आप उस तरह करें, सुबह के 8 बजे उठें, उठ के सबके लिए हम्म। नाश्ते बनाएं, फिर आप जॉब पे जाती हैं, आप जॉब भी करें, फिर आप वापस आए, वापस आके And अपनी that's सारी really it's not dependent on time या कब, like era की बात भी नहीं होती है कि personality की बात होती है. साल Some people even age में भी उनको आदत होती है सुबह को जल्दी उठ जाएंगे या या कोई अपना एक रूटीन है certain, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो भी every person in their household उसी तरह से एक्ट करेगा, like you can't expect कि अगर आपको 8 बजे उठने की आदत है तो आपके सारे बच्चे भी 8 बजे उठ रहे हैं, फिर बहू भी उठेगी, फिर तो वो भी एक चीज है कि टाइम तो चेंज होता ही रहता है, बट लोगों की पर्सनैलिटीज आर द थिंग्स दैट that we have to look at, क्योंकि हमारे साथ भी ये है ना, हमारे साथ भी ये है कि हमने जब टाइम था हमारी हिम्मत थी तो हमने किया, फिर हमने नहीं भी किया, right? Like talking about me being from a different generation, I was never able to wake up early in the morning. I was never able to do it. That was मैं कोई early class ले रही थी तो I would have to, मुझे टीचर खुद कहता था ड्रॉप कर दें प्लीज आप so you're not going to be able to make it. So so it's just a personality trait. कि अब मैं आज से 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मुझसे 25 years back. और अभी आप इस जनरेशन में you'll see people who are like early birds and सुबह को 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं, तो but you have to, हमको अपने स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, जो लड़के लड़कियों के पेरेंट्स हैं, उनको, क्योंकि अब मेरी वो एज है ना, अब सास वाली एज में आ गई हूँ अब मैं, तो what we have to realize is कि they can't be like us. There's no way, ना हमारे बच्चे हमारी तरह हैं और ना ही हमारी बहुएं या जो भी दामाद हैं वो हमारी तरह हो सकते हैं. It's not possible. और अगर हमारे बच्चे भी, I feel like हमारे बच्चे भी, and I would even suggest कि आप अपने बच्चों के लिए, and tell me what you think about it, कि बच्चों के लिए भी go to counseling for your kids and yourself, क्योंकि हमारे बच्चे भी I think half of their life, और इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, they pretend to be the way we want, खासतौर पे लड़के, they pretend to be the way we want them to be, ठीक है ना, और फिर जब शादियां होती हैं तो their own selves come out with their wives, तो फिर ये होता है इसको तो ये खाना नहीं पसंद था, ये तो ये करता नहीं है, तुमने इसके लिए ये कर लिया, तो वो तो ये करता नहीं है, हालांकि वो बाहर जाके वो सब कुछ कर रहा हो, कोई गलत बात नहीं, पर बाहर जाके वो खाना पीना भी खा रहा हो, वो उस तरह की वो सब कुछ कर रहा हो, but the mothers mainly don't know what their kids are up to.
और फिर वो अपने वाले रूल्स, फिर वो जो लाइक यू सेड वो अपनी ज़ाहिर बहू पे लगाती है. तो to understand your children, it's important to also don't think I know my kids. I know everything about my kids. We don't know anything about our kids. Yeah, you're That assumption right. is just wrong. So that This- also causes problems. Yeah, this is absolutely right. We can't say कि we Hmm. have, even I may say कि ना, I even don't know myself as well. Of हम course. बहुत सी बातें से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर Hmm. फ्रॉम कि अच्छा क्या मैं ये कर सकती थी, मैंने ये Hmm. किया, although how much हाँ. well aware you are of yourself. So this goes with your Hmm. children कि यू हाँ. कांट एक्सपेक्ट कि जी ये बच्चा ऐसा है तो ये सारी उम्र ज्यादा ऐसे ही रहेगा. इफ यू विल Hmm. डू पर्सनालिटी टेस्ट, you will have come to know कि after a 6 months, if you will do that personality test again, there will be a changes. It'll be Like for different. example, बिल्कुल. Hmm. पहले आप डिफेंडर पर्सनालिटी के थे, मे बी आप एडवोकेट हो Hmm. जाए इन द नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप. Hmm. तो with the passage of time a lot of thing happens. Hmm. Initially आप कुछ और होते हैं, similarly after marriage changes do come. Hmm. बहुत सी चेंजेस आती हैं, मे बी यू आर मोर कंफर्टेबल विद योर स्पाउस, सो आप अपने वल्नरेबल सेल्फ टू योर स्पाउस एज वेल. तो मे बी यू आर वेरी काइंड पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर स्पाउस एंड यू आर अ वेरी हार्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द, Hmm. Leverage to the family. उन्होंने या वो साइड नहीं देखी हो आपकी. हाँ. वो नहीं और देखी. and sometimes it's the opposite. I don't know. या कि या आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहन भाई से you're very, लेकिन जब उनके सामने you can't show affection to your wife यस because आपको ये लगता है कि फिर अम्मी तो नाराज होंगी या you know फला को बुरा लग जाएगा. And it can go either way. लेकिन वही या चीज है ना कि these limitations वो हमको फिर अगर हम पहले से डिस्कस हो जाएं तो it would make it a bit easier. पेरेंट्स, यानी कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भी must have a discussion कि okay mama, okay dad, I know कि my wife is coming, a new individual is coming into the house, what's your stance, you need to tell me what are your boundaries, कौन से ऐसे पॉइंट है you are not going to tolerate, कौन से ऐसे पॉइंट है which I am not going to tolerate. So जब when you will having this kind of a healing discussion with your own family, Right. तो उससे आई थिंक बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं. क्योंकि जब एक बंदा आ रहा होता है ना, अल्लाह ने शायद औरत में अडेप्टेबिलिटी रखी हुई है, दैट पर्सन विल अल्टीमेटली अडेप्ट टू योर एनवायरनमेंट. हाँ, वो तो But होता ही है of course. हाँ. how और you, हमारी लड़कियां तो तैयार ही होती हैं because they know that they're going into a different family, yes, so they're ready to and adapt to some extent. and the thing is that कि this is you who are making the environment welcome from the for the new person. कि आप आने वाले को कितना वेलकमिंग फील करवाते हो और उसको किस तरह लेके चलते हो, then adjustments हो. So for me this is a very important thing for a person who is going to start a new life, कि आप अपनी मेरिटल काउंसलिंग करवाएं करें, और यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, यू नीड टू लर्न हाउ टू resolve a conflict, you need to learn how to set the boundaries, you need to learn how to make decision of your own family, and if you need any help you do take that help. If you are not strong enough, then don't do that, don't go into the marital phase of your life, क्योंकि उससे आप अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ सफरिंग फ्रॉम द other person, and you are also creating a suffering from your children's. So I really believe that this is very important. And a lot of times ये भी नहीं है कि you're not strong enough or you're not able to. पता ही नहीं होता. जैसे हम बात कर रहे हैं कि बात वहां जहाँ से शुरू थी कि लड़कों को पता ही नहीं होता कि चूंकि लड़कियां तो घर में आ रही होती हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज उनका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से या अपने बहन भाइयों से इतना डिफरेंट होता है जो नॉर्मल एक रिलेशनशिप है अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, हाउस होल्ड है, कि they can't imagine कि जब ये बीवी आएगी तो things are going to change so much and I will be expected to do this and this and this and there will be ये कि वो खींचतानी होगी मेरे लिए कि मम्मी ये जा रही है वो, तो वो उसमें भी फिर हो जाता है. और फिर ये भी एक चीज होती है कि अम्मी तो बोल रही है तुम ही समझ जाओ, तुम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती, तुम क्यों नहीं. बट अगेन वही सब चीजें फिर. बट शादी से पहले ये होता है कि अगर आप
लड़के लड़की को ये कहें भी कि these are the things that need to be figured out, तो we don't have that. अगर उस तरह से सोचा जाए तो young adults, they don't have that thing कि I know him. अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे को, या आपने थोड़ी बहुत बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग, जो एक अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं quote unquote, तो जहन में ये होता है कि नहीं नहीं, इट्स गोइंग टू बी फाइन, हमने आपस में बात कर ली है, हमने चीजों को डिस्कस कर लिया। लेकिन जो हेल्प आपको एक प्रोफेशनल दे सकता है ना, आपके साथ बैठ के इन चीजों को जिस तरह से वो निकाल सकता है, या अगर कोई इश्यू आपको लग रहा है कि किसी मियाँ होने वाले मियाँ या मर्द के घर में है, और वो किसी लड़की को हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ वेरी timid गर्ल, बहुत ही सीधी सादी लड़की है, और आपको लग रहा हो कि ये इसकी फैमिली थोड़ा सा इसको पुश अराउंड कर सकती है, लड़के की फैमिली, तो उन चीजों को मैनेज, अब हो सकता है वो लड़की भी ना फिगर आउट कर सके कि लड़का ऐसा है, और लड़का भी ना उसको प्रोटेक्शन दे सके। तो अगर आप किसी के सामने बैठे हुए जो प्रोफेशनल है, जो दोनों सिचुएशन को कर ले, फिगर आउट, गेज कर ले, तो वो दोनों को प्रोटेक्शन फिर प्रोवाइड हो सकती है ना, कि लड़के को भी समझाए कि देखो अपने पेरेंट्स को जरा काम डाउन रखना, ये बाउंड्री, और लड़की को भी थोड़ा सा हिम्मत दे और ये बताए कि कैसे तुम्हें इन चीजों को डील करना है। तो ये इस तरह की चीजें जो आप खुद वन ऑन वन आपस में आप नहीं उनको उनसे डील कर सकते। यस, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे, बल्कि दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, कि जो हम शुरू में बात की थी कि सिर्फ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे तो फिर काउंसलिंग के पास जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस आई एम श्योर आपको आती होंगी सामने, बहुत सारे इश्यूज आते होंगे जो लोग जिस वजह से काउंसलिंग पे नहीं आते जी। तो क्या क्या इश्यूज आपको? सो बेसिकली के फर्स्ट वन इज दैट कि या तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैरिटल काउंसलिंग है, सेकंड दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर, third they are not allowed to share outside their family, like this will be considered very bad कि अच्छा तुम ये बातें किसी से जाके घर की बातें बाहर जाके करोगे, this is one of the issue। फिर sometimes they don't trust as well कि हमने किसी को बता दिया, वो हमारी बात बाहर जाके किसी और को ना बता दे, हम डिफेम हो जाएंगे। जब हम औरत की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स आर नॉट अवेयर, तो दे डोंट नो कि कोई तरह का देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैरिटल काउंसलर वेयर दे कैन go for their emotional well-being, because not only the circumstances outside, inside yourself you are having a lot of hormonal changes, you are having a lot of anxieties, because कहीं ना कहीं you are suppressing your emotions, बहुत सी जगहों पे you are not able to do a rant or catharsis, sometimes सेट हो जाती है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, हमारे दरमियान है, that is a very problematic thing for a person. Very problematic. That's a red flag, I would say. Yeah, that's a red flag. That's a red flag. Yes. So at that moment, if a person has no one to having a conversation, तो वो कैसे रह सकते? अगर मतलब majority of the time it happens कि if a lady get married, तो उसकी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद उसकी फैमिली हस्बैंड साइड वाली फैमिली होती है, शी हैज नो हर ओन फैमिली, सिबलिंग्स के साथ भी वो उस तरह इन टच नहीं रह पाती है, शी हैज नो वन टू शेयर हर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेरेंट्स और घर वाले भी यही कहते हैं ना कि बस ठीक है, मसले तो होते हैं, हर एक को होते हैं, बस सही है, हमने भी तो गुजारा किया, हमने भी तो इसी तरह, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम क्या करोगी, अब यही तुम्हारा घर है, these are the things which happen। तो at that point औरत को बहुत, मतलब जो एक औरत की आइडेंटिटी होती है बिफोर मैरिज, आई फील कि वो आफ्टर मैरिज वो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, द ओनली आइडेंटिटी इज योर हस्बैंड, और उसी की बेस पे आप जो है वो हर जगह नाम हो रहे होते हो। सो दीज आर द फैक्टर्स के लोग काउंसलिंग की तरफ इतना आते नहीं है, दे आर नॉट ओपनिंग अप, और उसकी वजह से बहुत से लोग कुछ में चले जाते हैं, कुछ लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ लोग स्वेयर केसेस में दे गेट ट्रॉमाटाइज्ड एंड उनकी कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है, उनका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। A lot of factors which are happening after marriage if you are unable to process it in a right way. So what are some other like problematic signs? जैसे अगर हम, I know we can't go over all of them,
लेकिन क्या साइंस हैं प्रॉब्लमेटिक जो रिलेशनशिप में प्री मैरिटल काउंसलिंग में जो डिस्कस होंगे या नजर में आते हैं जनरली? फर्स्ट वन, टेक अ नोट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन. पैसिव अग्रेसिव है. पैसिव अग्रेसिव मीन्स के बातें दिल में रख ली एंड स्टार्ट टॉन्टिंग. ताने देना, इधर उधर से बात मारना. Either that person is protecting you or limiting you. If the person is limiting you, that means कि that is a red flag. अगर वो आपके पोटेंशियल को ग्रो नहीं करने दे रहा और वो आपको फ्लरिश नहीं करने दे रहा, तो यू नीड टू रीचेक कि अच्छा इज इट अप्रोप्रिएट फॉर यू. प्रेशर हैंडलिंग में फॉर मी, मर्द में along with women, मर्द का पेशेंट होना is very important. Very important. Because For sure. We do have mood swings. We do have a lot of problems जो लड़कियां फेस कर रही होती हैं. हमने रेंट्स करने होते हैं, हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं because of a lot of factors happening in our own body. तो वहाँ पे a man need to be patient. And also because generally we women are dependent on men. तो अगर हमारे साथ उनका टेम्पर शॉर्ट होगा या हमारे साथ सख्ती या गुस्सा करेंगे तो we can't function. Yes. You know, हमें यही होगा कि मैं ये बात करूं, ये बात पूछूं या नहीं पूछूं, बच्चों की फला चीज का पूछूं, अपने इसका पूछूं, you know, तो वो that is not a healthy relationship. Yes. So you need to see that temper issue क्या है. पर्सनैलिटी में अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है, इज दैट पर्सन इज एबल टू रिजॉल्व दैट कंफ्लिक्ट, या वो उसको जस्ट इग्नोर कर देता है कि अच्छा चलो हो जाएगा, और ही विल बी हैविंग अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद यू कि अच्छा ठीक है ये हमारा इशू आ गया है, हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट. या वो ही जस्ट रन अवे कि अच्छा जी इशू आ गया है, मैं अब 2 दिन बात नहीं करूंगा, तीसरे दिन मामला खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा. This is not an appropriate way to deal with the situation. You have to sit, you have to have a conversation. Then there, मतलब I believe कि शादी is a teamwork. You need to check how the person is willing to extend support with you. घर अकेला औरत का नहीं है. I do know कि लोग कहते हैं कि जी घर औरत बनाती है, but for me घर मर्द बनाता है. अगर औरत के साथ उसका मर्द खड़ा होगा, औरत आपके लिए सब कुछ कर जाएगी, बट अगर वो सपोर्ट नहीं होगी, शी इज अनएबल टू डू एनीथिंग. अगर फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में जब आएंगे, खाना बना रही है, अब घर कपड़े बिस्तरी कर रही है, सफाई भी कर रही है, शी इज अ ह्यूमन बींग. वो अगर इफ शी इज अ वर्किंग लेडी, तो शी इज डूइंग हर अदर चोर्स एज वेल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट यू आर गोइंग टू एक्सटेंड टू योर वाइफ. आर यू विलिंग टू डू दैट, या आप उसी जमाने में हैं कि जी मैं मर्द हूँ, मर्द तो घर के काम नहीं करते. मेरे अबू ने यदि किया था तो फिर मैं भी नहीं करूंगा, वो जो एक होता है ना हमारे साथ. हाँ. यस. तो आजकल का जो जमाना है, इस जमाने में अगर औरत इज स्टेपिंग आउट फ्रॉम द हाउस, then mud need to support her in household chores, otherwise it's a problem. अगर वो बंदा support नहीं आपको provide करेगा, that's a basic red flag, because without men's support woman can't survive, either emotionally, either physically, either mentally, whatsoever. That is the most crucial thing. Then if you want to if you are seeing a relationship, if you are getting into the relationship, you need to understand what is the values of that person. वो बंदा किन characteristics को लेके चल रहा है, उसकी क्या limitations हैं, क्या boundaries हैं, और कहाँ पे अपने relationship को वो where does he sees his relationship with you. If you are important to that person, वो आपको वो importance दे रहा है, then go for it. If the person is ignoring you from the beginning, then this is a red flag for you. कि जो अभी नहीं कर रहा, most probably that person is not. हाँ. Yes. क्योंकि ये तो period होता है कि you give importance to your significant other. अगर अभी ही you're not a priority, तो फिर बाद में most likely it's not going to be. You can't be a priority. For the saying per se, we can't say कि अगर for example मैं अभी आपको कह दूं कि मैं X person is not the first priority of his husband, तो सुनने वाला कहेगा तो so what, क्या हुआ. But the person who is feeling that ना, for that it is traumatizing thing. It's everything for them, because आपने तो औरतों के साथ तो generally ये होता है कि their husband in their home, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे is everything.
That Yes, is your priority. चाहे आप जॉब कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, घर में हैं, you prioritize your home, including your yes, husband and your children. yes. लेकिन फिर रिटर्न में अगर आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है कि ठीक है हस्बैंड को जॉब करनी है लेकिन उसके अलावा वो अटेंशन वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, so you feel kind of cheated, betrayed कि Yes, I'm putting in all this work and all this time और मुझे रिटर्न में I'm not getting that equal amount of, शायद आप उसको क्वालिफाई तो नहीं कर सकते 50-50 में, लेकिन जिस तरह yes, से भी आप लोग का एक सिस्टम है कि I'm not getting that in return, and that's, you know, plain betrayal. And of course, you know, like you said कि it hurts. हम लोगों को जो दूसरे जब लोग इस तरह कहते हैं वो ये तो क्या हुआ, हमारी मैंने कभी हमें कहाँ पर एड्रेस किया, ये तो कभी घर पे नहीं होते थे, ये तो रात को देर लेट से आते थे सिक, बट आपने जस्टिफाई कर लिया ना अपनी सिचुएशन को बिकॉज यू हैड टू सर्वाइव इट, ठीक है yes, ना, वो एक जस्टिफिकेशन ले ली क्योंकि आप क्या करते, देयर yes, वाज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन थे बट यू नो नहीं अप्लाई किए गए, नहीं करने से अप्लाई जो भी था, but now there are solutions, whether it's happening to you before you get married or right after or, you know, in longer run. But there are solutions to bring yourselves back on that one page and one path. तो अब वो करने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग अलग तो लाइव्स बना लें अपनी yes. You're सेपरेट. absolutely right. And the last thing is the respect. Sometimes it happens कि in the umbrella of joke ना हम बात कर देते हैं and it is नहीं मैं तो मजाक बिल्कुल. कर रहा नो मैं तो तुम तो मजाक को भी सीरियस लेती हो नो disrespect is disrespect either you are cracking a joke either you are serious there must be no loop for the disrespect चाहे आप जो भी सिचुएशन हो सो इफ अ पर्सन इज गोइंग अंडर द शेडो कि यार मैं मजाक कर रहा था तुमने सीरियस ले लिया दिस इज अ रेड फ्लैग अगर वो अभी मजाक के उसमें आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव अ डिसरिस्पेक्टफुल विद यू आफ्टरवर्ड्स रिस्पेक्ट के ऊपर मैं कहती हूँ कि दिस इज द ओनली थिंग देयर इज नो टॉलरेंस there's no compromise on that. Respect पे कोई compromise because then कोई वैल्यू नहीं है ना रिलेशनशिप में. व्हाट इज लेफ्ट अगर आप में, क्योंकि honestly being married as long as I've been married, the level of love you have for each other changes and shifts, and how you love each other changes. ठीक है ना, वही होता है कि कुछ टाइम गुजरता है कि you are very close, you have that kind of understanding, लेकिन बीच में एक टाइम आता है you're both so busy, बच्चे छोटे हैं, इतना कुछ हो रहा है, and then you lose touch, and then you know then थोड़े बच्चे बड़े हुए, रात कुछ सोना शुरू किया तो जरा थोड़ा आपका होता है कि now we can talk, बच्चों के सोने के बाद या कोई टीवी शो देख रहे, you know, so आपकी जिंदगी में वो टाइम्स आते रहते हैं. yes बट एक जो चीज वो रहती है ना, या कभी लड़ाई होगी तो I don't want to talk to you, मैं एक हफ्ते तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी बस you know I just don't want to. तो वो सारे फेजेस होते हैं, you manage one way or the other, लेकिन जो एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए वो रिस्पेक्ट है. When you talk to each other, you talk with respect, you honor each other's wishes, उससे and I'm sure you know what I mean, कि उससे मतलब ये है कि जो एक जनरल हाउस होल्ड का जो एक सिस्टम बना हुआ है या जो आपकी जनरल नीड्स हैं, दे शुड नो, आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि चाहे कितनी भी लड़ाई है, चाहे कोई भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो जो रिस्पेक्ट की बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं हो रही. yes चाहे हम लड़ झगड़ रहे हैं, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट नहीं आएगी उसमें किसी की तरह से, चाहे वो नीड्स पूरी करने की बात हो या वो जिस तरह से आप कन्वे कर रहे हैं मैसेजेस उसकी बात हो या whatever it may be. तो इतने सालों के बाद that's what I say कि I don't know about love anymore because I tolerate him but I'm with him because he respects me. अगर ये चीज ना होती ना कि रिस्पेक्ट में कि मुझे लगता है कि कोई yes कमी है तो फिर क्या रह गया, yes you know? absolutely. फिर क्या रह गया. तो so क्या अब हमारे पास क्या है, आप तो आप you have counseling together with couples and then separately. Yes, this depends on the situation as well. Sometimes there is a need we have to have a discussion with both. Sometimes it happens okay
we see प्रॉब्लम उसी इंडिविजुअल में ही आ रही है that is coming for the counseling. तो in that Okay. situation we can go about to that person. और अगर in case दोनों की ही requirement है कि अब there is a conflict and that is only resolved if both of the parties are there, then obviously we will be taking the other person in loop as well. तो what about आपने यहाँ पे you were mentioning जब हमने points discuss किए थे कि emotional intelligence की बात की थी. I want to talk about that because that's a very important important point. When we talk about the emotional intelligence now, if I'll define emotional intelligence, so emotional intelligence means कि how you are able to perceive the emotion of another person, how much you can empathize with the other person. Empathy is the most important thing in any relationship. For example, हमारे यहाँ पे this is a very general perception कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द की फीलिंग नहीं होती, प्रेशर बिल्ड कर लो, अगर वो कमा के लाता है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा, that is his responsibility. These are kind of a statements which is for the male person. But in a relationship, empathy is important. If you will empathize with your man, okay, I feel you, you're working so hard, I feel you, where are you coming from, okay, my shoulder is there for you, you can cry, feel vulnerable in front of me. Empathy, when we talk about the emotional intelligence now, usme most crucial thing is empathy. Second one is how you are going to resolve the conflict. Conflict resolution अभी आपने mention किया कि we do have fights और हम लोग जो है बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, but element of respect should be maintained. लेकिन जब हम लोग conflict resolution की बात करते हैं ना, there must be a very clear and set boundaries as well as you have that capacity to own each other. आपको पता होना चाहिए कि this is the conflict that is creating a problem. This is individual who is creating. अब सिर्फ this is a scenario, उसमें कुछ हालात इस तरह के हो गए जिसकी वजह से the person is behaving in a certain way. The individual is not bad by him or herself. जब आप इसकी तरफ आते हो ना, if you are emotionally intelligent, then emotional intelligence में we do talk about the self awareness. Self का मतलब ये है कि how much you are aware of yourself. मेरे areas of improvement क्या हैं, मेरी strength क्या है, what are the things I am good at, मैं क्या चीज अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, मेरी shortcomings क्या हैं. जब मुझे पता होगा ना, then I can communicate कि okay, being in a team, यहाँ पे I can extend a support toward you, लेकिन this is my area of improvement. For example, I say कि जी मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, so if I have that awareness, I can communicate. Then what I can work on myself as well कि अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, I should go for the either meditation या फिर मुझे कोई थेरेपीज लेनी चाहिए, या I should go for some other way around to put away all of my anger. So self awareness, emotional intelligence में self awareness is very important. जितना आप अपने आप को जानोगे उतना आप किसी और को भी समझ पाओगे. इफ यू डोंट नो योर सेल्फ, मेजोरिटी वाइज हमें पता ही नहीं होता कि हम बिहेव किस तरह कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे एक स्लाइट सा वर्ड जो हम बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. So when we talk about the emotional intelligence, that means कि you not only understand yourself, you understand the other person and the emotions of another person. And then how your emotions will affect them. Yes. And how they might react, and then how that comes together. Yeah. No, that thing is actually very important. It's a very good point. क्योंकि उसी से I feel like 50% of the problems अगर दोनों का मियाँ बीवी दोनों अगर emotional intelligence का थोड़ा सा behavior adopt करें, तो I think 50% of the problems will actually disappear. Because बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि you just have to look at it from that person's point of view or how they might be feeling about that particular thing, you know. And हम पेरेंट्स की भी बात करते हैं, सास ससुर की बात करते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या जाहिर सासों के क्या इश्यूज हैं और लड़कों की मदर्स वगैरह की. एट द सेम टाइम बीइंग अ वुमन, अगर
certain things हैं that she prefers and they are not harming you. So if you are a very self-aware person and you care about his comfort, your husband, who you care about and you love his comfort, you let them, as long as they're not harming you. Because I fully believe in कि औरतों को सबसे पहले अपना, you know, they have to protect themselves before anything else. So you can let that go. You can let him have it because that will create peace of mind for him. You know, अब अगर mother की demand है, for example, कि मेरे साथ खाना खाए and she wants to have a one-on-one, whatever, किसी मेरा बेटा हो, करने दें हफ्ते में 2-3 दिन, because you're taking the pressure off of him कि तुम मेरे साथ नहीं रोज खाते और मेरे साथ रोज खा रहे हो. Maybe it's not the best case scenario for you, but it takes pressure off of him. And then that, you know, will later on eventually will, you know, convert into him actually having, if he's a good person, you know, having a better relationship with you and appreciating you, you know, in return. So इस तरह की छोटी छोटी चीजें, if you are self-aware that I can handle this and Yes. I can manage, ये नहीं कि आपको आप अपसेट नहीं होंगे या आपको ये नहीं होगा कि ये क्या बात हुई, अब 30 साल तक तो खा ही जाता है ना अपनी मम्मी के साथ हो गया, but you just manage because you understand the long-term effects of that. Yeah. So I mean, yeah, this is a very helpful in a marriage. I mean, we always talk about that in counseling and whatnot, but in premarital counseling, the effects of that, if you start to think on those lines, not just with for your own relationship with your spouse, लेकिन अपने पूरे ससुराल से जो एक relationship होता है, उन terms में भी. So the women, I think, can protect themselves better. Yes. And also keep a relationship with, you know, people in the family. Yeah, So do we have anything else? हमने cover कर लिया सब कुछ. Early warning signs तो हमने कर लिया cover, right? Yeah. Emotional connection की बात हमने, you wanted to, ये एक point था ना, how can couples maintain emotional connection? Yeah. So when we talk about कि emotional connections आप लोग किस तरह build करोगे, again वहाँ पे same thing is that communication. Communication is the key for the connection. जितनी आपकी healthy conversation होगी, उतना you are able to connect with each other. Again यहाँ पे emotional intelligence आ जाती है कि how much you are understanding the emotions of the other person, understanding where he is coming from, उतना आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यू नो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना बेसिकली इन अ वेरी क्रिस्प वे फाइल से, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. आपको पता है कि अच्छा एक इश्यू आ गया है, हम लोगों ने इस तरह बैठ के उसको रिजॉल्व करना है. अच्छा ये बंदी मुझे इन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ स्पोर्ट्स मी, तो देन obviously with the passage of time you will be having a strong relationship with the person rather than that कि हम एक दूसरे को बैठ के लड़ाई झगड़े करते रहें और उनको कहना शुरू कर दें कि जी तुमने ऐसे किया तुमने वैसे किया. Let's leave it, just have a resolve and then leave the topic. हम लोगों में से बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि वो for the time being वो issue resolve भी हो जाता है, फिर भी we keep it to ourselves. और फिर उसके बाद जो है वो उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं. जब रिजॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई, प्लीज लीव दैट टॉपिक, आप स्टार्ट ओवर. उससे आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा. ट्राई टू अप्रिशिएट ईच अदर, उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो. हस्बैंड वाइफ को करे, वाइफ अपने हस्बैंड को करे. हमारे हस्बैंड्स कभी कभी कर लेते हैं कि इनिशियल डेज में तो हो रहा होता है तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये भी अच्छा करती हो, वो भी अच्छा करती हो, लेकिन उस पीरियड में भी आदमी को अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, नहीं मिलती. ट्राई टू डू दैट. ट्राई टू डू दैट. आप थोड़ा बहुत उसको भी अप्रिशिएट कर दो. कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. डोंट डू दिस कि अच्छा इनिशियल ईयर्स में कर लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया. फिर आस्ते बस वो, हाँ, यस, इसी तरह फिर डिस्टेंस आता जाता है ना, इसी तरह डिस्टेंस आता रहता है. तो ट्राई टू एंगेज विद ईच अदर, ट्राई टू हैव एटलीस्ट 5 मिनट्स. आप ज्यादा टाइम, भाई हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम करते हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है, इट्स ओके. just 5 minutes spend with each other without mobile phones, just having a candid discussion. अच्छा आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, और if you don't have anything to say कैसे हुआ वैसे हुआ, just crack a joke. वो बातें मत करें जो सारा वक्त टॉर्चरिंग हो.
आपकी अपनी कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, मत बताएं कि जी आज घर में ये हुआ वो हुआ, उनको पता चल जाएगा किसी तरह से। ट्राई वो टू तो पता हैव अ लग ही जाता है। कन्वर्सेशन विच इज बिटवीन ओके, यू, ये कि मैं तुम्हारा। किसी ने सवाल किया है रुबाब ने कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थी कन्वर्सेशन? When I talk about the healthy conversation, it's a basically a healing conversation, which means कि अब मैं उनसे जो भी बात करूंगी उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे लड़ रही हूँ। बाज़ औक़ात we are having some conversation and it was perceived कि ये बंदी मेरे से लड़ रही है। अच्छा तुम्हारी मामा ने ये किया तो वो मुझे शिकायत लगा रही है। No, you have to tell the person कि okay, if अगर I am sharing something, अपना ना जब हम लोग conversation करते हैं ना, उसमें ना पर्पस बताना जरूरी होता है, ठीक है, कि इफ आई एम हैविंग द कन्वर्सेशन विद यू, दिस इज द पर्पस, बिकॉज हर बंदा अपने तौर पे परसीव कर रहा होता है। यू नेवर नो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया कि हाउ यू आर गोइंग टू परसीव इट। So you need to clear it कि okay, if I am having this discussion with you, this is my intention behind this discussion. When you talk to your spouse in this way na, that's a healthy conversation, जहाँ पे your partner will not feel threatened कि अच्छा मैं ऊपर जाऊंगा या अपने रूम में जाऊंगा तो अब हमारी लड़ाई होगी और ये मुझसे एक मसला शुरू हो जाएगा। नो, that person knows, just tell him कि यार I am going to have a healing discussion with you, मैं आपके साथ एक, though it's a hard discussion, but the purpose is not hard, it's not, my intention is not to And have it's a not to attack you or to blame you. It's just yeah, a conversation to resolve the issue जो भी हमारा yes. इस वक्त current issue. So when you have this kind of a conversation, that is the healthy conversation. Um, so she's asking, when sass and sister-in-law are always feeding your husband, what can the wife do? Let them feed him. आपको क्या है? आपका तो मसला हल हो रहा है. They're feeding him. लेकिन किस point of view से? हेरा? It's a two way thing, ठीक है। यहाँ पे आई नो कि जब ये फीडिंग हो रही होती है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है टूवर्ड्स द लाइफ ऑफ द मैरिड कपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डू अंडरस्टैंड दैट कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मामा आके मुझे कुछ कहेंगी तो आई लिसन टू हर एज कम्पेयर टू माई हस्बैंड। मैं कहूंगी नहीं मामा ने ये बात की है तो इसका मतलब है मैंने जिंदगी के एक टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, तो आई प्रेफर माई ओन मदर। सेम गोज विद द मेल। मेल को जब उनकी मदर आके कोई इस तरह की बात करती हैं विच यू फील लाइक कि इज नॉट राइट और शी इज जस्ट फीडिंग हर, ट्राई टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। उसका सिंपल वे पता है क्या होता है कि फर्स्ट डोंट डिस्कस योर इन लॉज विद योर हस्बैंड कि तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, कोई फायदा नहीं। ये उल्टा आपका ही रिलेशनशिप खराब करेगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किस तरह अपने हस्बैंड को अपने साथ एंगेज करूं। व्हेन मतलब दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि इफ यू आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट योर टू योर स्पाउस, इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, लाइक फॉर एग्जांपल आप उनके लिए प्रोटेक्टिव भी हैं, आप उनकी जरूरतें भी पूरी कर रही हैं, आप उनकी फैमिली के साथ भी अच्छी हैं, चाहे वो जैसे मर्जी है, दैट्स यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम। अगर वो आपको कुछ कहते भी हैं, यू आइदर leave the space or you can say कि okay just give me a minute I am coming back, कुछ बहाना करके आप कुछ भी आप बहाना वगैरह कर लो जिसकी वजह से उस इवेंट को डिस्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एंड बस मेन फोकस इज योर हस्बैंड कि मैंने अपना रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा रखना है। अगर उनको कोई कंप्लेन है, उनको इतनी आपने बाउंड्री देनी है कि अगर वो कोई आके आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट लिसन, डोंट रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। हम लोग गलती ये करते हैं, हम लोग ना वी जस्ट रिएक्ट। अच्छा उन्होंने अपसेट हो जाते हैं, हाँ, ऐसा बिकॉज कभी वी नहीं नो पूछते वी नो कि हमारी इंटेंशन नहीं थी Yes. कोई बुरा करने की, तो हमें होता है कि Yes. अगर हम नहीं किसी इंटेंशन के हाँ. साथ बुरी इंटेंशन के साथ कुछ कह रहे हैं तो why is this person Yeah. provoking? So basic I would suggest कि just focus on your own relationship, try to make your relationship strong. उसके लिए जो भी आप efforts कर सकते हैं वो आप करें and mute yourself for the family of your husband. That's the only survival stage for the time being. हाँ, लेकिन if you feel like there must be a firm boundary which is crossed by them,
then you have to take the stand. तब आपने बोलना है. लेकिन when you feel like कि अच्छा इसको बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, तो I would suggest कि just leave that thing. और क्योंकि उससे फिर ना ग्रजेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, उस वक्त ने मेरी मामा को ये कहा था, आपका हस्बैंड आपसे और फिर हस्बैंड वाइफ की आपस में पेरेंट्स की और बच्चों की तो इतनी नहीं होती ना, इवेंचुअली ठीक ही हो जाते हैं. हस्बैंड वाइफ की वो परमानेंट, फिर इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं तो वो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है. Yes. So I may say कि यहाँ पे not only the female, male need to work. कि अगर मेरा मानना ये है कि अगर मर्द ये बाउंड्री सेट कर दे कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट माय वाइफ, ऑब्वियसली वो बात होगी नहीं. जब बात होगी नहीं, मैनिपुलेशंस होंगी नहीं, तो क्लैशेस ही नहीं आएंगे. सेम गोज इफ अ वाइफ से समथिंग अगेंस्ट हिज फैमिली, ही हैज टू सेट द कि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन. So don't tell me कि किसी ने क्या किया. हम let's discuss that. Let's live in a house in a very friendly way. So यहाँ पे I would say कि यहाँ पे ये वो point है जहाँ पे husband को have to step forward. He must have that audacity कि वो stand ले ले for his wife and his own family. वहां पे फिर ऑब्वियसली सारे मसले. अब हमारे यहाँ पे होता ये है कि मर्दों पे ये प्रेशर आ जाता है कि अगर मैंने बीवी का साथ दे दिया तो मेरी माँ तो मुझे कभी बख्शेगी नहीं, और मैं तो बहुत ही नाकाम बच्चा हो जाऊंगा, और मैं सबसे मैं गुनाहगार हो जाऊंगा. नो, सेटिंग बाउंड्रीज डजंट मेक यू अ सिंफुल पर्सन. अगर आप अपने पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, शी इज माई अंडर माई प्रोटेक्शन, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. अगर ये चीज हस्बैंड मनवा लेना, यहाँ पे अगेन वही बात आती है कि हियर कम द काउंसलिंग स्टार्ट्स. हमारे यहाँ पे मर्दों में सबसे पहला फोबिया ये हो जाता है क्योंकि टू सम एक्सटेंट मदर इज द फर्स्ट लव. और अगर पहला प्यार आपसे दूर हो रहा हो ना, तो डेट विल क्रिएट एन एंजाइटी. अब वो जब बच्चा भी ये देखता है, यानी कि मेल पर्सन ये देखता है कि मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ही ट्राई टू मेक हर अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. वो उसको भी खुश रखना चाह रहा है, वो बीवी को भी खुश रखना चाह रहा है, लेकिन वो बाउंड्री नहीं सेट कर पाया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया. सो here the man need to take the stand, or he has to. I mean, ज़ाहिर responsibility lies on the man. ज़ाहिर आपके जवाब, if you're asking the question, आपके मियाँ पे या उन्हीं को करना पड़ेगा कि एक क्लियर मैसेज दें आपके लिए भी कि उनके पेरेंट्स के मामला में ना इन्वॉल्व हों, और पेरेंट्स को भी कि आपको, या अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोगों को दे नीड टू लीव देम अलोन. लेकिन जैसे हिरा ने कहा कि इस सिचुएशन में राइट नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात ना करें, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के बारे में. अगर वो कोई बात करते भी हैं तो जैसे हस्बैंड बताते भी हैं कि तुम्हारी अम्मी के साथ ये किया, बहन के साथ ये किया, और whatever it may be, you can just, if you want to, you can clear your position without attacking and blaming. लेकिन उस पे कोई झगड़ा या उसके जवाब में ये कहना कि वो भी ये करती मेरे साथ, वो भी ये करती, for the time being just back away from all that. उसको अवॉइड करें जब तक कि ये चीजें बिल्कुल काम डाउन ना हो जाए और आप एक दोनों बैठ के वो डिस्कशन ना कर सकें जो हिरा ने कहा है कि हैव दैट हेल्थी कन्वर्सेशन के में हमारे ये प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसकी हम बाउंड्री कैसे सेट करें. ठीक है ना. तो दोनों तरफ से, क्योंकि गुस्सा आता है, इमोशनल इंसान हो जाता है फॉर श्योर. इस तरह की आप रोज सुन रहे हैं कि अपनी ऐसे कोई शिकायत लगा दी, कोई लगा दी, बट दिस विल रिक्वायर सम वर्क ऑन योर पार्ट ऑफ कोर्स. लेकिन दिस इज अ स्टार्ट. और अनफॉर्चुनेटली हमारे, क्योंकि हम वो चीज होती है कि हम शादी से पहले से ये काम नहीं शुरू करते कि लड़कियों को भी बताएं और लड़कों को भी बताएं, कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब चीजें इस हद पे आ जाती हैं कि लड़कियां भी तंग आ चुकी होती हैं और सास ससुर और घर मर्द भी बिल्कुल कुछ हल नहीं नजर आ रहा होता किसी को भी, तब मसलों को हल ढूंढना शुरू करते हैं. One thing I add कि यहाँ पे वाइफ, this is your responsibility also कि आप make him realize कि you are in his protection.
तो ही मस्ट टेक अ स्टैंड इन अ वेरी सटल वे, यानी कि हाँ जब भी you are having a very nice conversation, then in a very lighter way you can say कि you are the protector of me, मैं आपके साय में जो हूँ अपने आप को secure feel करती हूँ. When you communicate these kind of a thing ना, then the husband knows कि अच्छा ये मुझसे ये expectations रख रही है. Sometimes we are unable to set the expectations as well. हम अपने husbands को बताते ही नहीं है कि how important they are. Exactly, and how important they are and what we need from them. Yes, Okay, yes, what we need from our men in general. You're yes. right about that. That's very important. उस वजह से भी समटाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हस्बैंड्स को पता ही नहीं है. तो जब पता ही नहीं है, क्योंकि बीवी का रिलेशनशिप है जो बहुत एकदम उनकी लाइफ में आया है. मदर का रिलेशनशिप, सिस्टर्स का रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप दे आर हैविंग फ्रॉम द बिगिनिंग. आपका रिलेशनशिप एक दफा आया है और ऑब्वियसली ही डोंट नो कि हाउ टू हैंडल अ फीमेल. हाँ, और वो भी उसको कैसे, स्पेशली how to work on it and what to Yes. do to keep it So together. if you are aware enough or you have that understanding, then this is your part also कि आप थोड़ी बहुत उसकी काउंसलिंग कर दें कि इस तरह होता है, इस तरह हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होती है. Whatsoever mean is that you can communicate as well. Yeah, I mean this is part of the healthy conversation कि आप पेरेंट्स की बुराई ना करें, लेकिन बस ये कहें कि this is what I need from you. Yeah. You know, अपनी बात करें, अपने रिलेशनशिप की और अपने हस्बैंड की, और if you have kids उसकी बात करें. Okay, तो क्या यूजुअली जब अब रैप अप करते हैं क्योंकि हमने काफी टाइम ले लिया, तो यूजुअली क्या टेक अवे यू लाइक कि जो आपके पास आते हैं शादी से पहले के जो कपल्स आते हैं प्रीमैरिटल काउंसलिंग के लिए, कि वो क्या 2-4 चीजें हैं जो टेक अवे करें आपके सेशंस के साथ? So if I'll say कि before marriage, take a marriage a responsibility. जैसे हम लोग फुल प्रिपरेशन करते हैं फॉर द मैरिज, कपड़े ऐसे होने चाहिए, जूते ऐसे होने चाहिए, वेन्यू ये होना चाहिए. You have to get prepared for your marriage as well. आपको अपनी उस लाइफ के बारे में यू शुड नो कि क्या क्वेश्चंस होने चाहिए विच आई एम गोइंग टू आस्क टू माय स्पाउस. उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, यू शुड नो. सो बिफोर मैरिज आई मस्ट से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव अ वेरी ओपन कम्युनिकेशन विद द पर्सन हु इज गोइंग टू बी योर स्पाउस. और अगर इफ यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद दैट पर्सन, तो यू कैन से योर पेरेंट्स के अगर आप रिश्ता देख रहे हैं और आपकी डिस्कशन होती है, काइंडली आस्क दीज क्वेश्चंस टू द पर्सन यू वांट मी टू मैरी. और वो क्वेश्चंस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए. Again, it is very important to work on yourself because this is the very important part of your life. और इस लाइफ की इस फेज से you are going to make a decision कि आप अपनी जिंदगी मिजरेबल बनाओगे या अपनी जिंदगी जो है वो एक हेल्दी उसमें लेके जाओगे. So this is all about me कि in a nutshell कि first work on yourself, and if you have any relationship or you want to commit a relationship, try to see the red flags and don't ignore that flags, or try to find out कि how the things work. That's all. ये relationships में क्या है? So a few things before we end. एक तो यही है कि of course it's important इन सब चीजों की information के लिए, and then जो everyday life की हमने बात की है, then उसके बाद हम जो पहले जो intimate information है जो हमने बात शुरू में बात की थी कि we don't have that kind of information. हमारे young adults को even आजकल भी इतनी information नहीं है जितनी होनी चाहिए. मैरिज शादी की उम्र में इतनी information नहीं जितनी होनी चाहिए, तो couples के लिए ये भी जरूरी है. तो while counseling is good for conflict resolution, building relationship and all of those things, ये जो premarital counseling होती है, and you can add to it, this is a focused kind of counseling. इसमें ये नहीं होता कि आपको normal counseling का तो ये ना कि we'll take it month by month or week by week. इसकी टाइमलाइन है, इसमें ये नहीं होगा कि आप बस आए जा रहे हैं और कोई there's going to be goals, there's going to be focused.
2-4 चीजें होंगी जो आपको भी डिस्कस करनी है, उसको भी डिस्कस करनी है. It's focused and it because of that it's brief, बहुत लंबा नहीं चलता, and it kind of doesn't बहुत सारे, जैसे अगर आम थेरेपी में तो you just it's a Pandora's box. Issue after issue after issue. So you do discuss a lot of your, traumas and your issues. Lekin kyunki it's up, you're trying to stay focused and you're trying to resolve some particular things. वो बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं होता कि आपको जिंदगी के सारे मसले और सारे इश्यूज आपको शेयर करने होंगे. So it's a small start just to get your married life on the right foot. फिर आगे आगे तो जाहिर है एक कुछ टूल्स जब आप लर्न कर लेंगे अपनी साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से, काउंसलर से, तो देन आप खुद भी, और सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट टूल जो आपको दे सकेगा पर्सन that's helping you is going to be actually self-awareness and emotional intelligence. So you can, when you walk into a room, you can see कि अच्छा ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है. Not read people's minds, but a general idea of what's happening. So, and just make decisions a little bit easier. So that's how I perceive premarital counseling. Which add करना है? Yeah, I just want to add well, premarital counseling may, along with the spouse, there must be a counseling of parents, siblings, and ताकि एक रीसेट हो जाए और जो वो एक प्रेशर होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाए. बिकॉज कहीं ना कहीं उन चीजों का इम्पैक्ट एक न्यूली मैरिड कपल की लाइफ के ऊपर आ रहा होता है. So I would suggest कि this is important कि in order to having a new life you must have good preparation for that ताकि you will be having a relationship afterwards. Sounds good. Thank you so much, Hira, for your time and all of the information that you gave us. And I apologize again for वो जो पहला हमारा आधा घंटा back and forth में गुजरा है. But अपनी आप information तो तुम्हारी है, तो वो put down your information in the caption ताकि people can reach out to you. Okay, sure. ठीक है ना? तो या तो comments में no, I'll put it जब मैं इसको post करूंगी ना अपने हमारी timeline में, तो मैं उस वक्त उस पे I'll put your information ताकि if people want to reach out to you तो contact फिर कर सकें जो लोग यहाँ पे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने बात करना चाहें या कोई, because you also do career counseling. तो अगर यहाँ पे ऐसे कोई हमारे सुनने वाले हैं who want to approach you for that, they can do that as well. All right, everyone, thank you very much for joining us. Thank you, Hira, once again for joining us and being so patient. And we will see you next time. And inshallah, we'll have Hira back on soon. Okay, thank you so much. All right. Thank you. Hello.